So just write the heading as parallel lines and transversals. So first write the heading as parallel lines. So in parallel lines, first write down lines which do not intersect each other. Lines which do not intersect each other at any point. So I'll give an example of this. Like for example, these lines are called as parallel lines, okay? And these lines over here, these are called as, क्या lines बोलेंगे ये second वाले को? Intersecting. Very good. These are called as intersecting lines. And इसको क्या बोलते हैं हम लोग? One line के ऊपर there is another line. ये कैसे टाइप का लाइन है? What kind of line is this? Concurrent. Okay, this is called as concurrent. Alina, just turn your camera on. First make this, जल्दी बना लेना. जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन लेगा उसको हम लोग कॉन्करेंट बोलते हैं. जब लाइंस एक पॉइंट पे मीट करते हैं तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं. जब लाइंस मीट नहीं करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस. चलो, नाउ नेक्स्ट हेडिंग राइट डाउन. Write the heading as transversal. Transversal. In this, write down line which cuts two parallel lines. Line which cuts two parallel lines are called, या फिर is called. So what are you written after which? Transversal. So you have written line which after which what have you written? Which cuts, which cuts. Okay, sir. Okay, so suppose these are like say two parallel lines. So a line which cuts two parallel lines is called as what? Transversal. Okay, let's consider this as what? Line L, this as line M, and this as line N. So what will you say? You will say N is a transversal
फिर what, how will you write L is parallel to M? You will write parallel ka sign is like two signs, two lines you have to make side by side. L is parallel to, or you can say line L is parallel to line M. Hello, Alina. Hello. जरा लिख लेना और किसको डाउट है तो पूछना. चलो. Now we'll go to the. Sir, 1 second. Sir, 1 second. Now we'll Sure, go done. to the third one, that is corresponding angles. Corresponding angles. So in this, write down angles which are on the same side and are over or below the parallel lines, over and below the parallel lines are called corresponding angles. So now this is important. यहाँ से आपको पता रहना चाहिए. तो यहाँ तक पहले लिख लेना. Then we'll do some examples. Clear करना. यहाँ पे जरा ध्यान देना. यहाँ पे which line is parallel to which line and which is the transversal. So line M is parallel to line N. Very good. And which is the transversal? Line N is transversal. Line L is transversal. Okay. Now over here, what I've said is angles which are on the same side. Now what we'll do is we'll take left side over here. Okay. Left side कहाँ पे रहेगा? इस तरफ. So angles which are on the same side. So we'll make same side वाले angles over here. ये भी क्या रहेगा? Same side वाले angles रहेंगे. Okay. तो जरा ध्यान दो. Angles which are on the same side and कहाँ पे रहेगा? Above और below. तो यहाँ पे देखो, ये जो रेड से मार्क किया है और ये रेड से मार्क किया, ये दोनों क्या है? लेफ्ट साइड में है और दोनों कहाँ पे है? बिलो है. तो ये क्या रहेगा? करस्पॉन्डिंग साइड. वैसे आप ये ब्लू एंगल को देखो. ब्लू एंगल कहाँ पे है? लेफ्ट साइड पे है, लेकिन कहाँ पे है? ऊपर. वैसे ही जो नीचे का एंगल है, ये कहाँ पे? लेफ्ट साइड पे है और कहाँ पे है? ऊपर के तरफ. So these are examples of what? Corresponding angles. क्लियर है सबको? चलो वैसे इस तरफ ये रहेगा, तो इधर किधर आएगा? यहां पे ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल किधर आएगा? ब्लू के बाजू में. ऊपर आएगा. ब्लू के बाजू में, ऊपर के साइड में आएगा. फिर यहां पे
ये पार्ट पे तो ये किधर है, राइट के नीचे है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, ग्रीन के बाजू में नीचे के साइड में। नीचे के साइड। क्लियर है? चलो और एग्जांपल्स लेता हूं। यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, इसको क्रॉस मार्क बनाओ। उस 1 सेकेंड, आप क्या कर सकते हो, ये जो येलो है उसको क्रॉस मार्क के साथ बताओ, जो रेड वाला है उसको सर्कल के साथ बताओ, तो आपको समझेगा ये सब सेम है। फिर यहाँ पे इसको आप स्टार मार्क के थ्रू समझाओ, ये दोनों सेम है। और एक ग्रीन वाले को यू कैन मेक अ बॉक्स। चलो now we'll do more examples. अलीना कैमरा ऑन करना। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल्स करते हैं। चलो यहाँ पे मैं सारे एंगल्स के नाम लिख रहा हूँ तो आपको इजी होएगा। ये L है, ये M है और ये N। A B C D E F G H। चलो मैं इंडिविजुअली आपको पूछूंगा, आपको लिखना है कौन किससे सेम रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। चलो अलीना बताओ, फर्स्ट जो एंगल किससे सिमिलर रहेगा। हाँ रेक्सिना बताओ। सॉरी। यस सर। हाँ कौन किससे सिमिलर रहेगा। सर ये जल्दी बताओ। सर सिमिलर मतलब हमें पैरेलल ढूंढना है। पैरेलल नहीं, एंगल ढूंढना। एंगल कौन सा सेम, सबका नाम दिया ना ABCD, तो उसमें बताना ए किसके साथ सिमिलर है, ए किसके साथ इक्वल है। ए एंड ए एंड एंड ए किधर है, सबसे पहले ए किधर है, ए इधर है कौन सा। किधर, लेफ्ट में कि राइट में। लेफ्ट। हाँ किधर है, ऊपर है कि नीचे है। ऊपर। ऊपर है, तो ए हाँ लेफ्ट के ऊपर है। वैसे देखो हाँ नीचे लेफ्ट के ऊपर में कौन है, ई है। ई है, तो ए ई हाँ के साथ सिमिलर, तो ऐसा लिखोगे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ई। चलो नेक्स्ट ऋषिकेश बताओ, बी किसके साथ सिमिलर है। So the N type sign is congruent. या दिस कॉन्ग्रुएंट, दिस कॉन्ग्रुएंट। चलो ऋषिकेश बताओ बी किसके साथ है। B is congruent to F. बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ। चलो नेक्स्ट सानवी बताओ, सी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। Yes, sir. C is congruent to G. सी इज कॉन्ग्रुएंट टू जी। नेक्स्ट एग्जांपल करना। So D. हाँ वेट 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 वेट, दैट आई विल आस्क अलीना। अलीना कैमरा ऑन करना। हेलो अलीना जरा कैमरा ऑन करना। हाँ सूर्य बताओ, डी किसके साथ सिमिलर है।
सर एफ। डी एफ के साथ सिमिलर है, कैसे बताओ? डी कहाँ पे, जरा चेक कर। सर डी। डी किधर है, किधर है? एक के नीचे। लेफ्ट में नीचे के तरफ है ना, लेफ्ट में नीचे के तरफ है। तो देखो Yes, कौन sir. लेफ्ट में नीचे के तरफ है? एच है। एच। सॉरी। डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एच। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपको दिखेगा कौन सा एंगल किससे सिमिलर है करके। चलो ईयान बताओ, Yes, sir. ए किसके साथ सिमिलर Sir, है? A is congruent to E. ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ई। चलो नेक्स्ट, अलीना कैमरा ऑन करना। हाँ अलीना बताओ, यहाँ पे बी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? बी किसका कॉन्ग्रुएंट है? चलो ये बताओ, ऋषिकेश बताओ, डी किसका कॉन्ग्रुएंट है? D is congruent to H. डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एच। नेक्स्ट सानवी बताओ, एफ किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? Sir, F is congruent to. So F is only told. किसका, एफ किसका कॉन्ग्रुएंट है, वही पूछ रहा हूँ। So it is already told to a B. तो इधर आएगा एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। नेक्स्ट रेक्सटीना, सी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? सी जी के साथ कॉन्ग्रुएंट है। सी जी के साथ कॉन्ग्रुएंट। चलो अब एक और एक एग्जांपल लेते हैं। अलीना कैमरा चालू करना। So 1 second, I'm switching off my video. या नो प्रॉब्लम। चलो अलीना बताओ, ए किसके साथ सिमिलर है? ए किसका कॉन्ग्रुएंट है? चलो तो यहां पे आप बताओ कौन ये रहेगा, ए किसके साथ सिमिलर है ऋषिकेश? किसके साथ है ए? G के साथ। तो यहाँ पे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू जी। नेक्स्ट इमैनुअल बताओ, बी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? So B is congruent to E. फिर इसके बाद नेक्स्ट ये बताओ, रेक्सटीना बताओ, सी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? सर करस्पॉन्डिंग। सी एच के साथ कॉन्ग्रुएंट है। और फिर नेक्स्ट सूर्य बताओ, डी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? हेलो सूर्य, डी किसका कॉन्ग्रुएंट है? हेलो सर। हाँ डी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? सर कैन आई रिजॉइन? या नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ अलीना, डी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? देखो आप जवाब नहीं दोगे तो अभी आपको मीटिंग के बाहर निकालूंगा, तो जवाब देना। डी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एफ के साथ। एफ के साथ। चलो तो ये कंप्लीट करते हैं हम लोग का करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वाला करने वाले क्या, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हेडिंग डालना,
तो नेक्स्ट हेडिंग डालो इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें लिखो एंगल्स which are present in the interior part of parallel lines on the same side. It angles on the same side. So let's do some हाँ बोलो। सर मैं दूसरे डिवाइस को ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ हाँ करो करो कोई प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट्स मेक इंटीरियर एंगल्स। सो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन कौन रहेंगे, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। चलो ये ए बी सी डी, यहाँ पे रहेगा ई एफ जी एच। अब ध्यान दो क्या बोला मैंने, दे आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट मतलब क्या है, देखो दीज टू L and M, these two are parallel lines। अभी रेक्सिना बताओ इनके अंदर कौन कौन से एंगल्स है, ये दो लाइन के अंदर कौन कौन से एंगल्स है, कौन कौन है ये दो लाइन के अंदर कौन कौन है, अंदर मतलब ये पार्ट ना, इसके अंदर कौन कौन है बताओ। एंगल हाँ इमानुअल बताओ अंदर कौन कौन है। अरे बाप रे दिख नहीं रहा क्या, ये अभी नर्सरी में जाना पड़ेगा, ये अल्फाबेट पढ़ना है तो। सर डी। डी, फिर और कौन है, सर सी। फिर ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചതാ। हाँ फिर बाद में और कौन है, और कौन है देखो, बी सी हो गया, बी तो ऊपर है ना, बी इज अबव, तो सर जी एंड एच। जी एंड जी एंड एच इज बिलो द पैरेलल लाइन, थोड़ी दो पैरेलल लाइन के बीच में है। सर एफ एंड डी। एफ एंड ई आएगा। तो ये सब क्या रहेंगे, इंटीरियर एंगल्स रहेंगे जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में आता है। यहां पे पेयर कौन कौन रहेगा, तो पेयर रहेगा ये देखो डी एंड एफ, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स रहेगा डी एंड एफ, ये एक पेयर है। एंड दूसरा पेयर किसका बना हुआ रहेगा, सी एंड ई का बना हुआ रहेगा, इधर रहेगा सी एंड। So these are pair of interior angles, okay? ये बना लेना जल्दी, अलीना कैमरा ऑन करना। Write the names of all the angles A, B, C, D, F, H, E, G। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन है सानवी यहाँ पे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जरा बताओ सर इंटीरियर एंगल्स कौन कौन है। और जरा इधर ध्यान दो, आप फोन में बहुत देख रहे हो, इधर ध्यान देना, कौन कौन रहेगा बताओ। C F and D and H। E F D and H, कैसे E F D and H कैसे, C and Interior F angle। सर। C and F F, और कौन है, D and H। D and H, so these are the second interior pair। तो इधर आएगा D and H। चलो और एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे।
चलो ये बताओ, रक्षिना बताओ कौन कौन इधर इंटीरियर एंगल्स का पेयर? एक्स एंड ई। चलो ये फर्स्ट हो गया। ये बताओ अलीना, दूसरा बताओ, सेकंड पेयर कौन रहेगा? Y Interior. and F. Y and F. So this is the next pair. Y and F. Okay, now one more example. Chalo, over here, A, B, C, E, H, X, Y and P. हाँ, यहाँ पे ये बताओ, सानवी ने बोल दिया था। रक्षिना कैमरा चालू करो, जिनका कैमरा बंद रहेगा मीटिंग के बाहर हो गया। सानवी स्पेशली आपको बोल रहा हूँ। हाँ रक्षिना बताओ कौन कौन रहेगा, ये आपने रक्षिना ने बताया था। ऋषिकेश बताओ। Sir, CP and EH CP are and the two pairs. S correspond interior angles. चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना। Write the next heading as vertically opposite angles. Vertically opposite angles. So in this, write down angles formed on opposite sides of two intersecting lines are called vertically opposite angles. चलो, so we'll do an example. जैसे कि यहां पे देखना, ये देखो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए, तो इसमें क्या, देयर आर फोर एंगल्स व्हिच आर फॉर्म, 1 2 3 4। ठीक है, नाम देते ए, बी, सी और डी। अब यहां पे सबसे पहले ऑपोजिट साइड्स में, ए का ऑपोजिट साइड में कौन सा एंगल है? So B. B. So A is congruent to B. These are called as vertically opposite angles. Similarly, can you tell other pair? दूसरा pair कौन है? CD. CD. रेक्सिना आवाज नहीं आ रहा है, रेक्सिना अलीना का। C is congruent to D आएगा। चलो, now we will take for parallel lines. चलो ट्राई करना। सर वो Y के नीचे क्या है? Y के नीचे X। चलो सबसे पहले अलीना बताओ, A का ऑपोजिट साइड में कौन है? X. So these are vertically opposite angles. Then इसके बाद नेक्स्ट ये बताओ सानवी। Yes, sir. Sir, हाँ बोलो। तो कौन सा बोलो?
कौन सा आपका ध्यान किधर है, किधर देख के बैठे हो? सर हमने ए और एक्स बोला उसमें, हाँ तो उसके बाद वाई और जेड आएगा y एंड z। चलो नेक्स्ट, रेक्सटीना बताओ। Yes, sir. P and R. नेक्स्ट सूर्य बताओ। Sir, S and D. S is congruent to D. One more example. चलो बताओ कौन कौन सा सिमिलर रहेगा। इयान पहले बताओ। Sir, A and X. A is congruent to X. Now next ये बताओ ऋषिकेश। अच्छा ऋषिकेश नहीं है, अच्छा ऋषिकेश है, बताओ क्या रहेगा। S is congruent to R. S is congruent to R। फिर इसके बाद नेक्स्ट सानवी। yes sir, z is congruent to w। अलीना लास्ट वाला बताओ। Y is congruent to P. Y is congruent to P। ये लास्ट टाइप का एंगल इधर तो पहले बना लेना। चलो now the last type, write the heading as alternate angles। Alternate angles। So in this write down angles which are formed on the opposite side and alternately at the top and bottom are called alternate angles। I'll give an example। So over here, just check out, just 1 second, ध्यान दो इधर। चलो ये वाला x ये कहां पे है, ये है लेफ्ट साइड के नीचे, तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या आएगा, राइट साइड के ऊपर आएगा। तो इसके राइट साइड के ऊपर कौन है, इसके राइट साइड के ऊपर देखो, राइट साइड के ऊपर मतलब ये एंगल देखो राइट साइड पे है और ऊपर के साइड में है, तो यहां पे लिखोगे x is congruent to y। अब हम लोग नेक्स्ट एंगल चेक करेंगे z। z कहां पे है बताओ। Sir, right side bottom. राइट side साइड के bottom। नीचे। तो आपको क्या चेक करना है, Left side. left side bottom। Right side के Left bottom. side. left side Right side के bottom। bottom. ठीक है, ठीक है। यहाँ पे Left side up. दिस इज वेयर राइट के बॉटम में है। तो आपको इसका उल्टा करना है, तो राइट का उल्टा क्या है Left. और Left बॉटम का side। उल्टा क्या Left है, up. Up. up up। बॉटम का उल्टा है टॉप। ओके अब यहाँ पे लेफ्ट का टॉप किधर है, इधर है ना, Yes sir. yes ये sir। हो जाएगा।
और व्हाट एल्स यू कैन सी इज, ये देखो एक ऐसा जेड फॉर्म करता है, ऐसा जेड फॉर्म करता है। ऐसे यहाँ पे देखो एक जेड फॉर्म हो रहा है ना, ये दूसरे साइड पे भी देखो, इफ यू कैन सी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक जेड फॉर्म हो रहा है, इफ यू ऑब्जर्व। क्लियर है, जेड फॉर्म होता है। अभी एक और है देखो, नेक्स्ट है ये ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या लेते हैं, पी। ये पी कहाँ पे जरा बता सकते हो? Sir, Left side. Sir, right side bottom, left side Left side. right side bottom. ओके ओके। सानवी, आप कौन से हाथ से खाते हो? Sir, मैं आंसर बोल रही हूँ। अच्छा, आप आंसर बोलते हो। तो ये किधर है? लेफ्ट साइड के टॉप में है। तो आपको कहाँ देखना है? Right side Right side bottom, right side bottom. ओके, तो राइट साइड के बॉटम में कौन है? ये वाला। समझ रहे हैं? राइट साइड के बॉटम में कौन है? चलो अब रेक्सटीना बताओ, ये कहाँ पे है? ये वाला साइड, ये किधर है? ये बताओ। ये राइट साइड टॉप है। राइट साइड टॉप है। तो इसका ऑल्टरनेट एंगल कहाँ पे आना चाहिए? लेफ्ट साइड बॉटम, तो किधर आएगा? इधर इधर। W के नीचे। W के नीचे। तो इधर आएगा P किधर, इसको क्या नाम देते? X तो हो गया, A दे। तो क्या लिखोगे? P Q के साथ, फिर R A के साथ, एंड लास्ट में क्या बचा? Z W के साथ। तो ये क्या है? पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। आपको कंप्लीटली ऑपोजिट देखना है या फिर एक Z बना के चेक करना है। चलो एक और एग्जांपल। चलो इसमें आप एक सेकंड, चलो यहां पे लेट्स टेक A B C D E F G H। बोलो कौन कौन सेम है? sir, A and A and H. A एंड B and F. आराम से, G and and F. G, आराम D से। and G. Sir, D and B, G. पहले B का देखो, B किसके साथ सिमिलर है? Sir, B and F. B and F. B and F. फिर D किसके साथ सिमिलर है? B and G. B and G. फिर C किसके साथ सिमिलर है? C and E. C and E. ये बना लेना। मीटिंग एंड हुआ तो